Okay, students, then I just I am going to start machine topic. Okay, topic is DC machine. Therefore, actually I am related to, I am especially concerned to the students of 4th semester polytechnic. Okay, who has to study DC machine. Okay, then as you know, machine, especially I am talking about machine. When I say to any of you about machine, then actually there is a smile on my face, because I am just going to explain. I have taught so many years this paper. First thing is that, and second is this topic, though it is very conceptual, therefore many students take it as a dry paper. Do you get dry paper? मतलब not interested. बच्चों लोग को जनरली ज़्यादातर I have felt that most of the students are not too much interested in studying electric machine. I myself say that this is a dry paper. Okay, being the teacher of especially machine in MIT's NC Chandi and Begusara also, being the teacher especially of electrical machine, I felt myself that this is a dry paper. Dry mean to say, I mean to say dry means not interested. Okay, then our duty, though students are not interested in this subject, but you have to study after all, है ना? इंटरेस्टिंग नहीं है, फिर भी आपको पढ़ना तो है, and you have to score marks. Then what's our duty? What is the duty of teachers? Here, our main duty is to make it interesting, है ना? टीचर ही जब सब्जेक्ट आपको टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना के नहीं समझाएंगे तो स्टूडेंट को ड्राई पेपर तो और ड्राई लगेगा. ओके, देयरफॉर आई एम ट्राइंग टू मेक इट, आई विल ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग, दो इट इज कंसेप्चुअल. देन आई जस्ट वांट टू से कि जब आप मशीन पढ़ रहे हो तो जस्ट ट्राई टू लिसन मेन थिंग्स, कि आपका इसका मेन बेसिक्स क्या है. बेसिक्स जब आपको क्लियर हो जाए, देन यू विल सी दैट एवरी मशीन इज ऑलमोस्ट सेम, वर्किंग प्रिंसिपल इज सिमिलर, कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर. ओके, तो आप लोग कोशिश करिए बेसिक चीज़ समझने का. अगर बेसिक चीज़ समझते हैं आप, तो हमको नहीं लगता है आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा. इट विल बी, यू विल फील इंटरेस्टिंग दिस पेपर, है ना? मन लगेगा, स्कोर भी कर सकते हैं. एंड आई विल ट्राई टू गिव यू, टू कंट्रीब्यूट यू my experience with you, so that you can get good marks in this paper also by solving numericals, है ना? हमारा जब आप एक्सपीरियंस ये तो देख ही रहा होगा, तो एक्सपीरियंस के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह से बताएं और न्यूमेरिकल्स भी इतना बताएं कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना लगे, आराम से समझ में आए, एंड you may be able to get good marks. Okay, then I am starting. बहुत ज़्यादा क्या बोले, आप देखिए स्टार्ट करते हैं और कोशिश करिए बेसिक चीज़ समझने का, और इट विल बी एंड फॉर योर you know, then you have to only study DC machine and transformer part, okay, in your course. Then let us start.
Then from before starting, I will try to say you the main objectives of this DC machine. Actually, what I want to explain you. क्या है मेरा यहाँ मेन एम क्या है? हम इस DC मशीन में again I have written here for DC machine for 4 semester students. Okay. Then what are our main objects? यहाँ हम लोग क्या क्या मेन टच करेंगे वो देखिए. जो सिलेबस आई विल कवर श्योरली. तो देखिए क्या है हम यहाँ पर आपको कवर करने जा रहे हैं. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है क्या? ओके. व्हाट एक्चुअली is done in rotating electrical machine. Then second one is what is working principle before these machines. Okay. And what is the basic construction? You have to know about the construction, but before that you must know what is the basic construction. क्या क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्या क्या होता है, वो तो एक्यूरेसी है, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए कि हमारा कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होना चाहिए. देन दैट इज एंड आई विल आल्सो शेयर अबाउट द कॉमनली यूज्ड मशीन्स. कि आपका हम लोग कौन कौन मशीन जो ज़्यादातर यूज करते हैं. और आजकल आपको मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दीज थिंग्स. एप्लीकेशन तो पूछा जाता है. ओके. देन आई एम हेयर गोइंग टू टच मेनली दीज टॉपिक्स. Okay, then come here. Rotating electrical machine. Generally, electrical machines are of two nature. First is transformer, that is known as electrical machine. Static electrical machine. क्या है कि आपका ट्रांसफॉर्मर में नथिंग इज ऑफ रोटेटिंग नेचर है ना. कुछ ट्रांसफॉर्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, कहीं रखा हुआ है, वहाँ जो आपका EMF ट्रांसफ़र होता है, वोल्टेज ट्रांसफ़र होता है, वो क्या होता है स्टैटिक मेथड से. ओके. थ्रो कपलिंग. यहाँ आपका क्या है कि द मशीन्स मेनली जनरेटर एंड मोटर्स. मशीन्स आर व्हाट? जनरली स्टैटिक मशीन इज ट्रांसफॉर्मर एंड दिस इज रोटेटिंग और डायनेमिक मशीन. तो हेयर वी आर आपको ट्रांसफॉर्मर अगला बार में जो ये चैप्टर खत्म कर देंगे उसके बाद बताएंगे. तो हेयर वी आर इंटरेस्टेड इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन. तो हमारा जो मशीन होता है रोटेटिंग क्यों करते हैं? एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. ओके. व्हाट इज हैपनिंग हियर इन इलेक्ट्रिकल मशीन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी is being converted into mechanical energy. Okay. Then this type of electrical machine is known as electrical to mechanical. Then this is known as motor. Okay. When electrical energy is converted into mechanical energy, then this device is known as motor. Or just vice versa, when mechanical energy is converted into electrical energy, then this is known as generator. Okay. Okay. समझ गए? जैसे आपको एग्जांपल ही देखा दे. क्या करते हैं आपके यहाँ वाटर लिफ्टिंग मोटर होगा, क्या करते हैं आप? जस्ट स्विच ऑफ ऑन करते हैं. स्विच ऑन है ना. मोटर में क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं. इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके. एंड व्हाट इज बीइंग डन? मैकेनिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड. क्या करते हैं? हम स्विच ऑन किए तो आपका मोटर क्या है? पानी को ऊपर लिफ्ट अप करता है. ये क्या है आपका? पानी आप बाल्टी में ले जाइएगा, क्या है वो? मैकेनिकल एनर्जी. देन इन मोटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. नाउ कम हियर. जनरेटर आप देखोगे प्रैक्टिकली समझिए.
जनरेटर देखे होंगे क्या करते हैं, ऐसे हैंडलिंग करके इसे रोटेट करते हैं, या कुछ ऐसा होता है जनरेटर ऐसे करके खींचते हैं। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एनर्जी। आप क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल एनर्जी। एंड व्हाट इज डन, व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या हो गया कि हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, दैट इज जनरेटर। ओके, then actually what we are going to say, the machine is actually of two types. What are those? Motor and generator. Okay. Any machine is either motor or generator. Mind it, ये जान लीजिए आप, आपका मैन्युफैक्चरर जो बनाता है वो मशीन बनाता है, ठीक है। हम लोग को इनपुट कहाँ दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो मोटर है कि जनरेटर है। समझ गए, मशीन हमारा मशीन होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन होता है। इफ वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड गेटिंग मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज आवर मोटर। मैन्युफैक्चरिंग अलग से नहीं होता है कि ये जनरेटर है ये मोटर है, ऐसा नहीं होता। वो हम शेप वैसा अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं, ठीक है। तो एनी इलेक्ट्रिकल मशीन इज मे बी कैटेगराइज्ड एज मोटर और जनरेटर। मोटर इज व्हाट, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी। Then why we say it rotating? Okay, here what happens, there is generally a stator. Okay, there are two parts mainly here, one is a stator. Okay, one is a stator, what is one part is a stator. I am giving you a rough idea of construction. I will say construction, working principle, everything in details. But this is the introductory class and this is the just basic idea of the machine. Okay? I will clarify in detail on each and everything. But यहाँ आपको हम just idea दे रहे हैं। रोटेटिंग मशीन क्या है, आपका दो चीज होता है इसमें, मेनली स्टेटर होता है और रोटर होता है। स्टेटर इज व्हाट, दिस इज स्टेशनरी पार्ट, दिस इज द स्टेशनरी पार्ट। ये क्या होता है, स्थिर होता है। जो चीज गोल गोल जैसा चीज जो स्थिर होगा उसको हम लोग स्टेटर कहते हैं। जनरली एक्सटर्नल पार्ट, बाहरी जो हिस्सा होता है उसको हम स्टेटर बनाते हैं। कोई भी मोटर वगैरह देखते हैं तो बाहरी वाला जो हिस्सा होता है वो हम क्या उसको जनरली कहीं कहीं चेंज होता है, लेकिन जनरली क्या होता है, बाहरी हिस्सा जो होता है, बाहरी गोल वाला जो पार्ट होता है उसको हम स्टेटर बनाते हैं। इट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू रोटेट, एंड द अंदर वाला पार्ट, इंटरनल पार्ट इज कॉल्ड रोटर। इट इज ऑलवेज इन रोटेशन, इट इज रोटेटरी। रोटरी कहिए, रोटेटरी कहिए, दोनों चीज कर सकते हैं, रोटेटरी पार्ट या रोटरी पार्ट। तो ये क्या होता है, आपका एक अंदर में गोल जैसा चीज होता है ना, और इसके अंदर में ये बाहर वाला जो चीज हो गया इसको हम लोग स्टेटर कह रहे हैं, और ये अंदर वाला जो चीज हो गया इसको हम लोग रोटर कहते हैं, ठीक है। तो ये रोटर स्टेटर के अंदर घूमता है, बट देयर शुड नॉट बी फ्रिक्शन इन बिटवीन बोथ। ये क्या है, रोटर स्टेटर को टच नहीं करना चाहिए, वो बीच में एक स्पेस होना चाहिए, एंड दैट स्पेस इज नोन एज एयर गैप, है ना। क्यों, ऑल ऑफ यू आर स्टूडेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जब ये आपका एक चीज घूम रहा है और दूसरे से टच करेगा, इट विल कॉज हिटिंग, हिटिंग में कॉज सो मेनी डैमेजेस। तो ये आपका रोटर स्टेटर के अंदर घूमता है, लेकिन बीच में एयर गैप होता है। ओके,
This is the rotating electric machine. Therefore, here there is a rotation. Therefore, it is known as rotatory या rotating electrical machine. Okay? अब क्या है यहाँ कि आपका जो है ये जो है इस जगह पर आइदर दिस वन, अब है हम ये डिफरेंट देखें कि स्टेटर हो गया, रोटर हो गया, बीच में एयर गैप है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल है कि आपका ये पहले जान लीजिए, दीज टू आर मेड ऑफ मटेरियल, समझ लीजिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल समझते हैं, जिसमें गुड मैग्नेटिक क्वालिटी हो, तो यहाँ आपका फ्लक्स अच्छा से फॉर्म करेगा, है ना। अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो वहाँ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड अच्छा बनेगा। ओके, देन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर इज व्हाट? दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल फॉर जनरेटर। तो जनरेटर में क्या है कि जनरली आइदर स्टेटर और रोटर, ओके, जनरली these two either stator or rotor works as what? Magnetic. It provides magnetic. क्या करते हैं? स्टेटर कहीं कहीं पर स्टेटर, कहीं कहीं पर रोटर। When I will especially a confined with DC machine, then I will say which one is the stator, which one is the rotor. Okay, then either in this stator or this rotor will work as what? Will work as, will provide magnetic field. क्या करेंगे कि स्टेटर या रोटर से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ओके, एंड देयर इज ए पार्ट विच इज इन स्लॉट्स वगैरह भी बताएंगे, आर्मेचर। Third one is armature. Armature is the what? Assembly of conductors. क्या है? यहाँ बहुत सारा कंडक्टर होता है, वो क्या है? कंडक्टर है। Then because of magnetic here, magnetic flux will be available, magnetic field है, and we are rotating, then there is relative speed, okay, and there are conductors, then with the help of Faraday law of electromagnetic induction, EMF will be induced and it will be obtained where? In armature. Okay, armature will have binding and a core, which I will explain in detail. Okay, तो क्या है कि आपका तीन पार्ट समझ गए, एक हो गया स्टेटर, दूसरा हो गया रोटर, तीसरा हो गया क्या? आर्मेचर। आर्मेचर में मेनली क्या होता है? कंडक्टर्स होता है। ठीक है, असेंबली ऑफ कंडक्टर बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारा रहेगा तो हमारा ईएमएफ आराम से ज़्यादा मिल जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज मिल जाएगा, तो ये असेंबली होता है। और तो आइदर आपका स्टेटर या रोटर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। देयर विल बी ए रिलेटिव मोशन, देन टू थिंग्स आर अवेलेबल, रोटेटिंग रिलेटिव स्पीड and magnetic field, and if there are conductors, then because with the help of EMF induced will be given by equal to nd phi by dt. ओके, तो हमारा क्या होगा? वोल्टेज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ओके, वोल्टेज इंड्यूस होगा तो हमारा क्या हो गया? ये आपका किस तरह से हो गया? मैकेनिकल एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है, ये जनरेटर का फंक्शन होगा। और मोटर में क्या होगा कि वेन एक कंडक्टर ऑफ लेंथ एल लंबाई का कोई कंडक्टर लेंगे,
कैसा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। आई मीन्स करंट। तो ये जो कंडक्टर है एल लेंथ का, इस तरह का, इसका लेंथ हम ले लें, कंडक्टर है, इसका लेंथ एल है। और व्हेन ए करंट of I value is passing through this and it is rotated in a there is a magnetic field available। क्या है, एक कंडक्टर है जिसका लेंथ एल हो, जिससे करंट I पास कर रहा हो, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी। कैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसका फ्लक्स डेंसिटी बी हो। कंडक्टर कितना करंट कैरी कर रहा, आई, लेंथ कितना, आर। तो इसमें जो हमारा एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा दैट विल बी गिवन बाय बी इंटू आई स्क्वायर। तो ये इसमें एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा जो आपका टॉर्क का काम करेगा, टॉर्क प्रोवाइड करेगा और आपका मोटर घूमने लगेगा। ऑन दिस प्रिंसिपल मोटर वर्क्स, ऑन दिस प्रिंसिपल जनरेटर वर्क्स। व्हेन दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल you understood rotating electrical machine, because here rotor rotates in an electric machine, either generator or motor. So rotor rotates, therefore it is known as rotor rotating electrical machine। Okay, then you have understood working principle। working principle क्या हुआ कि जनरेटर अगर है तो हमारा क्या होगा, इसमें एक स्टेटर होगा, रोटर होगा और एक आर्मेचर होगा। आर्मेचर में क्या होगा, कंडक्टर रखा हुआ होगा। स्टेटर या रोटर क्या करेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, और रोटर रोटेट करेगा तो आपका क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया। तो तीनों चीज़ के कारण, रिलेटिव स्पीड, प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके कारण आपका क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ एंड इफ सर्किट इज क्लोज, जब सर्किट क्लोज होगा तो क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। एंड दिस इज द बेसिक ऑफ जनरेटर। ओके, यहाँ क्या कर रहे हैं कि अगर हम किसी कंडक्टर को जिसका लेंथ एल हो, उससे करंट आई पास कर रहा हो, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो अपने ऊपर एक क्या करेगा, फोर्स फील करेगा। जो फोर्स एक टॉर्क का प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क बनाएगा, और जिसके कारण आपका मोटर रोटेट करेगा। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड दिस। ओके, देन यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वेर आवर मेन ऑब्जेक्टिव्स। रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन प्रोवाइड वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग कंस्ट्रक्शन का आपको आइडिया दीजिए। बेसिक कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपका एक स्टेटर होगा जो बाहरी फील्ड है, और ये आपका क्या काम करता है, हाउसिंग, माने बाहर से मोटर को इंटरनल पार्ट का, मोटर का जो इंटरनल पार्ट है और सब चीज उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, बाहर से सुरक्षा देता है। देयरफॉर जनरली स्टेटर्स आर टेकन एज एक्सटर्नल और हाउसिंग। एक्सटर्नल पार्ट और हाउसिंग, हाउसिंग मतलब आपका जिसके अंदर सारा चीज रखा हुआ है और बाहर से प्रोटेक्ट करता है। ओके, व्हाट आर द थिंग्स। बेसिक कंस्ट्रक्शन में क्या हो गया, स्टेटर हो गया, रोटर हो गया, उसके अंदर आर्मेचर है, और इफ देयर इज जनरेटर तो हमें ये मैकेनिकल एनर्जी देंगे। इफ दिस इज मोटर देन वी विल गिव सप्लाई एंड फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड दैट विल स्टार्ट टू रोटेट द मशीन। ओके, बेसिक कंस्ट्रक्शन इधर। और भी एक चीज़ बताया आपका इम्पोर्टेंट चीज़ कि स्टेटर रोटर के बीच में स्पेस थोड़ा सा खाली होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एयर गैप। उस एयर गैप में आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों, मैग्नेटिक फील्ड का इम्पोर्टेंस समझ गए। और गैप होने का कारण क्या है कि वेन देयर विल नॉट बी एनी गैप, देन रोटर विल रब द स्टेटर। रोटर क्या है, रगड़ाएगा, है ना, फ्रिक्शन करेगा किससे, स्टेटर से। तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा जो कि डैमेजिंग होगा मशीन के लिए। ओके, देन ओके, दीज आर द थिंग्स। नाउ कम एट व्हाट कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, commonly used electrical machines are what, generally we use AC machines। ओके, AC मशीन्स में हम लोग मेनली क्या यूज करते हैं,
इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन, ओके। इंडक्शन मशीन में भी सबसे ज़्यादा होता है इंडक्शन मोटर यूज, इंडक्शन जनरेटर लगभग नहीं यूज होता है। मशीन मीन्स मोटर एज वेल एज जनरेटर। तो आप जान लीजिए कि इंडक्शन मोटर आपका पूरे इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में 80% से ज़्यादा पावर प्रोवाइड करता है। कौन? इंडक्शन मोटर, ओके, इंडक्शन मोटर। एंड जनरली इंडक्शन जनरेटर आर नॉट, इंडक्शन जनरेटर हम लोग जनरली यूज नहीं करते, कहीं कहीं स्पेशली यूज होता है। तो एसी मशीन में आपका मेनली कौन है? इंडक्शन मशीन। सेकेंड वन इज योर डीसी मशीन। डीसी मशीन में भी हम लोग सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं? ज़्यादा यूज करते हैं डीसी मोटर, ओके। डीसी मोटर्स सबसे खूब यूज़ होता है, मतलब क्यों ये भी बताते हैं। और डीसी जनरेटर कम हम लोग यूज करते हैं, क्यों? पहले बात है कि आपका डीसी मोटर यूज करने का कारण क्या है कि इट इज़ वेरी एक्यूरेट। इसका स्पीड कंट्रोल डीसी मोटर का बहुत एक्यूरेट होता है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा बहुत अच्छा होगा, जो कि हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। डीसी जनरेटर जनरली बहुत हम लोग ज़्यादा नहीं यूज करते हैं। जहाँ डीसी स्पेशली ज़रूरत हो वहाँ हम डीसी जनरेटर यूज करते हैं, ठीक है। अब थर्ड वन इज व्हाट? सिंक्रोनस मशीन। सिंक्रोनस मशीन, ओके। सिंक्रोनस मशीन में सबसे ज़्यादा क्या यूज करते हैं, या उल्टा कैसे? इसमें इंडक्शन मोटर सबसे ज़्यादा यूज कर रहे थे, इसमें डीसी मोटर सबसे ज़्यादा यूज कर रहे थे। सिंक्रोनस मशीन में ज़्यादा आपका दोनों यूज होता है। सिंक्रोनस मोटर भी यूज होता है और सिंक्रोनस जनरेटर ये भी खूब यूज होता है, ये तो बहुत यूज होता है। और सिंक्रोनस मोटर भी खूब यूज होता है, ओके। सिंक्रोनस जनरेटर क्या है? आपका पावर हाउस जो भी है, आइदर इट इज़ थर्मल और इट इज़ हाइडल, जो हमारा पावर हाउस है, पावर हाउस में जो होता है मशीन, वो सिंक्रोनस मशीन होता है। सिंक्रोनस मशीन इज द मशीन which rotates at a fixed speed, that is known as synchronous speed, है ना। इसका स्पीड ऑलवेज फिक्स होगा एंड दैट इज नोन एज सिंक्रोनस स्पीड, ओके। तो ये आपका सिंक्रोनस मशीन एवरीवेयर यू विल फाइंड इन पावर हाउसेस। सिंक्रोनस मोटर बहुत जगह यूज होता है, जैसे हमको ये बताएंगे आपको डिटेल में। सिंक्रोनस मोटर फेज एडवांसर के रूप में यूज होता है। जहां हमको लैगिंग पावर फैक्टर मिल रहा है ये यूज करेंगे। कैपेसिटर जो तो यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे, ओके। देन दीज आर द थिंग्स which I just want to communicate with you about DC machine. In next class, I will just say the main things of your syllabus. ये आपका इंट्रोडक्टरी है, आपको बता दिए मेन क्या क्या चीज़ कैसे कैसे करना है। और आपका अगला चैप्टर जो होगा, माने अगला जो लेक्चर होगा मेरा, वो मेनली आपका टॉपिक से रिलेटेड होगा। टेक इट एज इंट्रोडक्शन एंड इट विल गिव यू सो मच आइडिया अबाउट डीसी मशीन, ओके, अबाउट मशीन्स, especially machines and DC machines also. And in next class your syllabus is what? You know, construction, types. Then I will just go through the main, जो मेन चीज़ बताना है उस जगह हम इधर उधर जो डेविएट होने वाला, बहकने वाला ये चीज़ बता रहे हैं, वो चीज़ बता रहे हैं, वो सारा चीज़ नहीं बता रहे, स्पेशली टॉपिक से रिलेटेड, ओके। मीट यू अगेन।